गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕਪਲਸ। ਕਪਲਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਟੂ ਅਨਲਾਈਕ ਪੈਰਲਲ ਫੋਰਸਿਸ ਜੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਇਫੈਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਟਰਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਪਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੋ ਪੈਰਲਲ ਫੋਰਸਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪੁਆਇੰਟ ਏ ਅਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਫੋਰਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕੁਛ ਇਫੈਕਟਸ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰਸਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਫੈਕਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਕਪਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਪਲ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟੂ ਪੈਰਲਲ ਅਨਲਾਈਕ ਪੈਰਲਲ ਫੋਰਸਸ ਐਕਟਿੰਗ ਐਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਫ ਦ ਬੋਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਫੋਰਸਸ ਨੂੰ 90 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਕੱਟ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਏ ਬੀ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਆਰਮ ਆਫ ਕਪਲ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਪਲ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ P, ਏ ਬੀ। ਜਿਹੜਾ P ਹੋਏਗਾ ਦੈਟ ਵਿਲ ਸਿਗਨੀਫਾਈ ਦ ਫੋਰਸ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਟਿੰਗ ਦ ਕਪਲ ਐਂਡ ਏ ਬੀ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਦ ਆਰਮ ਆਫ ਦ ਕਪਲ। ਤਾਂ ਆਰਮ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰਲਲ ਫੋਰਸਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ 90 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੀ ਕਪਲ ਦੀ ਆਰਮ ਲੈਂਥ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਲੈਂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਪਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੱਧ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਕਪਲ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਹੈ, P ਗੁਣਾ AB ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਸਸ ਇਕੁਅਲ ਅਤੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵਡ ਪਾਰਟ ਲਓਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰਸਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵਡ ਪਾਰਟ ਅਲੋਂਗ ਐਨੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਜ਼ੀਰੋ। ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਪਲ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਲ ਇਫੈਕਟ ਬੋਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਨੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਪਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਫੈਕਟ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਇਫੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਲ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕਪਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਕਪਲ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਫੋਰਸਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਪਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਕਪਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲਜਬਰਾਇਕ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਲਜਬਰਾਇਕ ਸਮ ਆਫ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਫੋਰਸਸ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਪਲ ਅਬਾਊਟ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨ ਦਾ ਪਲੇਨ ਇਜ਼ ਕੌਨਸਟੈਂਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਫੋਰਸਸ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਸਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਜਬਰਾਇਕ ਸਮ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਲਜਬਰਾਇਕ ਸਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਪਲ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਪਲ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਜੋ ਫੋਰਸਸ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਲਜਬਰਾਇਕ ਸਮ ਆਫ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਫੋਰਸਸ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਕਪਲ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਕੌਨਸਟੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਦੋਨੋਂ ਕਪਲ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਦਾ ਪਲੇਨ ਆਫ ਕਪਲ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ PAB ਮੇਰਾ ਕਪਲ ਹੈ, P, AB ਕਪਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੇਸਿਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਹ ਕਪਲ A ਅਤੇ B ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸਸ P ਅਤੇ P ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਆਹ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ O, ਜਿਹਦੇ ਅਬਾਊਟ ਆਪਾਂ ਅਲਜਬਰਾਇਕ ਸਮ ਆਫ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹ A ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ A ਅਤੇ B ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ A ਅਤੇ B ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ A ਹੈ ਇੱਥੇ B ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ B ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਟੂ ਫੋਰਸਸ ਅਬਾਊਟ O। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ P ਨੇ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਇਫੈਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ? P ਗੁਣਾ OA ਅਤੇ ਇਸ B ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੀ ਫੋਰਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੂਗੀ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਇਫੈਕਟ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਏਗਾ P ਗੁਣਾ OB, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਲਜਬਰਾਇਕ ਸਮ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅਲਜਬਰਾਇਕ ਸਮ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ?
पी ओ बी माइनस ओ ए। तो ओ ए वाला माइनस इसलिए है बिकॉज जो एंटी क्लॉकवाइज इफैक्ट क्रिएट करेगी, सॉरी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करेगी, तो करके नेगेटिव लै लेने हैं। तो ओ बी माइनस ओ ए तो अपना ए बी के बराबर है, ठीक है। तो आंसर की आ गया अलजेब्राइक सम ऑफ मूवमेंट्स ऑफ फोर्सेस इज इक्वल पी डॉट ए बी। हुण जे पॉइंट ओ ए तो बी के विचकार लग रहा हो, उस केस च अलजेब्राइक सम ऑफ मूवमेंट की होगा, इत्थे दोनों फोर्सेस ही क्लॉकवाइज सॉरी दोनों फोर्सेस एंटी क्लॉकवाइज इफैक्ट क्रिएट करनी है रोटेशनल। तो दोनों के मूवमेंट पॉजिटिव ने, पी ए ओ तो पी ओ बी, पी कॉमन काढ़ लो, ओ ए प्लस ओ बी, ओ ए प्लस ओ बी तो ए बी के बराबर ही है, ठीक है। इस केस भी अपना मूवमेंट जो ए बी आ गया, पी डॉट ए बी आ गया। तीसरे केस जो अपना ओ बी के सज्जे पासे हो गए, है ना, उस केस की होगा। हुण इस केस जोड़ा है बी नैगेटिव इफैक्ट क्रिएट करूगा, नैगेटिव मूवमेंट जनरेट करेगा। तो पी ए ओ ये तो ए उपर लगने वाली फोर्स का मूवमेंट होएगा, तो पी बी ओ है ना, ए बी उपर लगने वाली फोर्स का मूवमेंट होएगा, नैगेटिव लवांगे इनू। तो लिख लिया इसनूं, तो पी ए ओ घटाओ बी ओ, इन्होंने दोनों घटाओगे दोनों, तो ये भी ए बी आऊगा। तो तिना केसेस जो मूवमेंट आ पी डॉट ए बी ही आ रहा है, ठीक है, जो कि कॉन्सटेंट है ना। तो यदा मतलब कपल का मूवमेंट कितना है जो भी कॉन्सटेंट आ रहा है पी डॉट ए बी है। उस तो बाद आप रिमार्क डिस्कस कर सकते हैं। रिमार्क के है कि जो पॉइंट ओ आम के उपर लग ही ना रहा हो, मतलब ए बी के उपर लाई ना कर रहा हो, ए बी के उपर या ए के सज्जे पासे या खब्बे पासे, इस तरह हो ना किसी होर पॉइंट के उपर हो प्लेन के ही, पर आर्म के उपर ना हो, ठीक है। उस केस की कर सकते हैं आप कपल में शिफ्ट कर सकते हैं इस तरीके नाल कि जी पॉइंट ओ है वो आम के उपर आ जाए, मतलब कहने तो भाव कि जोड़ा पॉइंट ओ है वो या ए के खब्बे पासे आ जाए या ए तो बी के विचकार आ जाए या बी के सज्जे पासे चला जाए, ठीक है। इस तरह करना मुमकिन है क्योंकि जिन्हें फोर्सेस ने पैरेलल ने, तो पैरेलल फोर्स को तुसीं किवें भी मूव कर सकते हैं जॉइंटली, ठीक है, प्लेन दे विच। उन्हां दा कोई जिहड़ा मतलब उन्हां दा रिजल्टेंट इफैक्ट होगा, है ना, या उन्होंने मूवमेंट्स होंगे या जो उन्होंने रिजोल्व पार्ट के अलजेब्राइक सम होंगे वो चेंज नहीं होंगे, वो ज्यों के त्यों ही रहणगे। बस ये है कि तुसीं फोर्सेस नूं दोनों नूं जॉइंटली पैरेलल रखना है, तो मूव जिवें मर्जी करी जाओ। मूवमेंट ऑफ कपल फिर इत्थे पी डॉट पी क्रॉस ए बी ही बनता है। तो डेफिनेशन तो ये बन जाती है कि जे पी फोर्स है तो ए तो बी के उपर लग रही है फोर्सिस, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फोर्स के विचकार थ्रू लाइन ए बी, तो मूवमेंट इतों डिफाइन होएगा पी गुना ए बी, ठीक है। इत्थे कपल का जो मूवमेंट ज़्यादा होएगा जे पी ज़्यादा है या ए बी ज़्यादा है या दोनों ही ज़्यादा है, ठीक है। तो मतलब कपल के मूवमेंट बढ़ाने लिए यार तुसीं फोर्स नूं बढ़ा सकते हो, तो या तुसीं आर्म की लेंथ नूं बढ़ा सकते हो या दोनों ही बढ़ा सकते हो। एक प्रपोजिशन है टू कोवलेंट ऑफ कपल्स ऑफ इक्वल मूवमेंट एंड ऑपोजिट डायरेक्शन बैलेंस ईच अदर। जो कि दो कपल है ना, जो उन्होंने दोनों के मूवमेंट बराबर ने, तो जे दूजे दोनों एक दूजे ने भिड़ते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन तो एक दूजे बैलेंस करनगे, ठीक है। तो ख्याल रखियो तो कपल देखने को अलग अलग लग सकते हैं पर उन्होंने मूवमेंट सेम हो सकते हैं, ठीक है, मूवमेंट सेम हो सकते हैं, तो मूवमेंट सेम होने ना एक दूजे को बैलेंस भी कर सकते हैं। हालांकि वो दोनों अलग अलग नज़र आएंगे थ्रू देयर फोर्सेस एंड थ्रू देयर आर्म। तो बैलेंस करने की स्थिति इतने अपनी आ रही है, इस तरह बन रही है। मैं कपल लै लिया, एक तो कपल आ नज़र आ रहा, एक पी इधर लग गई, एक इधर हो गई, एक ये कपल हो गया, एक आ कपल हो गया क्यू वाला, ठीक है। एक फोर्स क्यू इधर लग रही, एक इधर लग रही है। तो आप एक इस तरह डिस्टेंस डिफाइन कर ले, ये परपेंडिकुलर खिंचता आप डी एम, तो एक इधरों आप परपेंडिकुलर खिंचता बी एल। ये परपेंडिकुलर हेल्प करनगे मूवमेंट फाइंड करने में कपल की। जिवें कि सपोज करो इस कपल का मूवमेंट कितना होगा पी गुणा डी एम, तो इस कपल का मूवमेंट कितना होगा क्यू गुणा बी एल, है ना। तो ये दोनों फोर्स कपल एक दूसरे के उपर लग रहे हैं ओपोजिट डायरेक्शन के उपर भिड़ रहे हैं एक दूसरे नाल, ठीक है। ये आप देखना कि बैलेंस किवें करनगे एक दूसरे नूं। अगे चलते हैं। क्योंकि कपल बराबर ने तो जो पी डॉट पी है क्यू डॉट क्यू है, ये पी डिस्टेंस है वाला, ठीक है, क्यू डिस्टेंस जो बी एल है। सिंस दिस सैक्शन ऑफ फोर्सेस कपल आर पैरेलल दे विल फॉर्म ए पैरेललोग्राम ए बी, क्योंकि तुसीं उन्होंने एक दूसरे ने पढ़ा रहे हो, क्योंकि कपल दी फोर्सेस पैरेलल होंदियां ने, जो एक दूसरे ने पढ़ाओगे तो उहदियां फोर्सेस चारों फोर्सेस मिलकर एक पैरेललोग्राम बना सकदियां ने ए बी सी डी, ठीक है। तुसीं परपेंडिकुलर ड्रॉप करो डी एम तो बी एल वर्गे, डी एम पी के बराबर तो बी एल जोड़ा क्यू के बराबर है, ठीक है। दोनों पासे तुसीं हुण इत्थों लिख सकते हो पी डी एम इज इक्वल टू क्यू बी एल,
अपने, क्योंकि वो मूवमेंट बराबर है ना उन्होंने, क्योंकि दोनों मूवमेंट बराबर ने पी डी एम, तो वो पर लिख लिया। आलसो पैलोग्राम तो भी अपन पता, पैलोग्राम ए बी गुना डी एम जोड़ा है वो ए डी गुना बी एल के बराबर होगा पैलोग्राम के अकॉर्डिंग, पैलोग्राम के लॉज के अकॉर्डिंग। दोनों भाग कर दो, इन्हों इसनों तो इसनों भाग कर दो, इतने की हो जाएगा पी डिवाइड बाई ए बी इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई ए डी। तो बड़ी क्रूशल चीज़ बन जाती है कि जो पी है वो ए बी के प्रपोर्शनल है, तो जो क्यू है वो साइड ए डी के प्रपोर्शनल है। ठीक है, तो ये इतों की है जो दोनों का रिजल्टेंट होगा ना वो सी ए दे लॉन्ग एक्ट करूगा, दोनों का रिजल्टेंट सी ए दे लॉन्ग एक्ट करो, ए सॉरी ए सी दे लॉन्ग एक्ट करूगा, नॉट सी ए। इस तरह सिमिलरिटी आप जो दूजियां दो फोर्सिस बच गई पी तो क्यू, पी अलॉन्ग सी बी तो क्यू अलॉन्ग सी डी, उन्होंने जो रिजल्टेंट होगा सी ए दे लॉन्ग एक्ट करेगा। तो रिजल्टेंट अलॉन्ग ए सी तो रिजल्टेंट अलॉन्ग सी ए दोनों बराबर होंगे, एक दूजे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, जिस करके ਜਿਹੜੇ कपल भी एक दूजे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, या कह लो एक दूजे के इफैक्ट को कैंसल आउट कर देंगे। दूजा केस बन सकता जे कपल दी फोर्सिस पैरेलल ही होण एक दूजे नाल, जिवें इत्थे मैं डायग्राम बनाई हुई है, देख ही रही है, डायग्राम बनाई है। एक तो कपल हो गया वाला ए बी वाला फोर्सिस नज़र आ रही हैं, एक आ सी डी वाला कपल नज़र आ रहा है। ठीक है, क्यों क्यों फोर्सिस लग रही ने, तो वैन लाइन ऑफ एक्शन आर पैरेलल टू कपल सच दैट दोनों के मूवमेंट बराबर ने, पी गुणा ए बी क्यू गुणा सी डी के बराबर है। ठीक है, क्योंकि मूवमेंट की डेफिनेशन होंगी है ना, पी गुणा आर्म की लेंथ क्यू गुणा आर्म की लेंथ सी डी, है ना, तो ये बराबर ने, ये अपना गिवन है, मान के चलो। इसमें अगे चलते हैं, जो रिजल्टेंट होगा पी का ए दे उपर तो क्यू का डी के उपर, वो कितना होगा पी प्लस क्यू, दोनों इक्को पासे है ना, दोनों डायरैक्शन दोनों की, पी ए दे उपर तो क्यू डी के उपर, दोनों की रिजल्ट डायरैक्शन इक्को पासे है, तो वो की होगा पी प्लस क्यू होगा, लगता कितने पासे होगा, थल्ले वाले पासे लगता होगा, एक्टिंग डाउनवर्ड, तो मान के चलो कि वो एम के उपर लगता पाया। ठीक है, फिर आप पैरेलल फोर्सेस वाला, फिर पी ਇਹਦਾ मतलब की होगा, फिर पी ए एम बराबर क्यू एम डी के बराबर होगा, रिजल्ट तुम्हें पता ही हो, याद होगा वाला रिजल्ट। तो पी ए बी तो क्यू सी डी अपन रिजल्ट पता ही है ना, वाला रिजल्ट पिछे पेज पर लिया सीगा, दोनों को घटा दो, दिस माइनस दिस कर दो, है ना, ए पी ए बी माइनस ए एम क्यू सी डी माइनस एम डी, ए बी माइनस ए एम बी के बराबर है, ख्याल रखना है। ठीक है, तो क्यू सी डी माइनस एम डी सी एम के बराबर है ना, तो यदा मतलब फिर जरा दस रिजल्टेंट ऑफ पी एट बी एंड क्यू एट सी वो की होगा। आ तो चलो पूरा हो गया, संभाल लो, इसनों संभाल लिया। तो हुण इत्थे अपनी एम की लोकेशन पता लग गई आपां कि जरा रिजल्टेंट है फोर्सेस का पी एट ए तो क्यू एट डी, उन्होंने रिजल्टेंट एम के उपर लग रहा, सो दैट दिस होल्ड्स। ठीक है, हुण अपनी दूजियां दो फोर्सेस लो, पी एट बी तो क्यू एट सी, ये दोनों उपर लगदियां पईयां है ना, इन्हों का रिजल्टेंट होगा, सॉरी डाउन थले में लगदियां पईयां, उपर नूं, सॉरी उपर नूं, 10 रिजल्टेंट ऑफ पी एट बी जो कि उपर नूं तो क्यू एट सी जो कि उपर नूं, इन्हों का रिजल्टेंट पी प्लस क्यू होगा, तो वह एम के उपर एक्ट करूगा, इस उपरले प्रोसीजर के अकॉर्डिंग जिस तरह उपर साबित किया है ना, तो वह एम के उपर एक्ट करूगा। ये दोनों जो रिजल्टेंट ने फोर्स एक दूजे को कैंसल आउट कर देंगे, सॉरी ये अकॉर्डिंग अपन ये साबित होंदा पे रहा एज अकॉर्डिंग, जो आप इसमें देखिए हाँ रिलेशन को ध्यान ना देखो जरा, ये तो ये साबित होंदा पे कि बी तो सी के उपर लगदियां फोर्स का रिजल्टेंट जो एम ते पास करेगा, है ना, तो आ की साबित करती, ये साबित करती भी ए तो डी के उपर लगदियां फोर्स का रिजल्टेंट एम के उपर लगता पे, पर वो डाउनवर्ड है ना, पर आ रिलेशन साबित करती पई है कि बी तो क्यू सी के उपर लगदियां फोर्सेस अपवर्ड, उन्होंने रिजल्ट एम के इफैक्ट करेगा। हम एक पी प्लस क्यू एम के उपर अपवर्ड एक्ट करती पई फोर्स, तो एक पी प्लस क्यू एम के उपर डाउनवर्ड एक्ट करती पई है, दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट तो करनी है क्योंकि बराबर ने तो अपोजिट डायरैक्शन ने, तो इस केस के भी अपने जो कपल है एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। एक रिमार्क है, द रिजल्टेंट ऑफ नंबर ऑफ कोप्लानर कपल इज इक्वल टू सिंगल कपल ऑफ मूवमेंट इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट ऑफ गिवन कपल। तो ये प्रपोजिशन है, सॉरी, तो ये प्रपोजिशन की कहती है कि जो मान लो सपोज करो 7-8 कपल ने, 7, 8, 9, 10 किन्ने भी कपल लै लो, फाइनाइट नंबर ऑफ कपल्स लै लो, उन्होंने सारिया का कपल का जो मूवमेंट होगा ना वो सिंगल कपल के बराबर होगा। ठीक है, तो सिंगल कपल का मूवमेंट कितना होगा, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द मूवमेंट्स ऑफ अदर कपल्स, राइट, क्लीयर। मतलब जे अपने को फाइनाइट नंबर ऑफ कपल्स ने तो तुसीं उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ कंबाइन करके एक सिंगल कपल च कन्वर्ट कर सकते हो।
ठीक है। वो सिंगल कपल का मूवमेंट जोड़ा है सारे कपल के मूवमेंट के जोड़ के बराबर होगा, यही मतलब है। तो बड़ी नैचुरल जी थ्योरम हैगी है, प्रैपोजिशन है, प्रूव करना कोई औखा नहीं है, फिर भी तुम अपने लैवल से देख सकते हो, 2 लाइनों का प्रूफ है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगे चलते हैं, फोर्सेस एक्ट कर रही ने, इक्वल फोर्सेस ने तो अनलाइक पैरलर ने, सॉरी लाइक पैरलर अनलाइक पैरलर फोर्सेस ने। एक लगती पई A10 पर, दूजी लगती पई B-10 पर, कपल बना रही ने तो मूवमेंट जो 10 यूनिट है। तुम फोर्स को पता करो, ठीक है, जे AB वो आर्म हो, ठीक है, AB वो आर्म है तो फोर्स को पता करो, फोर्सेस किहड़ियां ने कपल दी। चलो मैं अपना बना लिया, आ फ्रेम बना लिया, XY फ्रेम, एक फोर्स 10 पर थले लै ली, तो एक -10 पर उपर लै ली, तो यह कपल दिखा रहा मैं इस तरह, ठीक है। तो इन्हों का मूवमेंट कितना होगा, आ पॉइंट A है, पॉइंट B है, ठीक है। ये दूरी कितनी होगी, 1 -1, 2 आंसर आ जाएगा ना, आ दूरी 2 बनती पई है, ठीक है। ये दूरी गुणा P, ये मूवमेंट होगा P गुणा 2, पर असल में मूवमेंट आपको 10 दे रखा है, ठीक है। 2 इधर भाग हो जाएगा, फोर्स निकले आएगी, ठीक है। 5 यूनिट फोर्स आ जाएगी, हर एक फोर्स जी 5 यूनिट होगी। आ जो AB डिस्टेंस है, तुम डिस्टेंस फार्मूला लगा के भी निकाल सकते हो, पर क्योंकि एको लाइन के उपर है, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि आ 1 यूनिट है, आ भी 1 यूनिट है, जोड़ दो सीधा 2 यूनिट डिस्टेंस आ जाएगा। फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 1, 2, 3, 4 एंड √2 acting along the sides AB, BC, CD, DA and diagonal of AC of square ABCD of side A show that their resultant is a couple and find its moment। आ इस तरह फोर्स लगदियाँ पईयां स्केयर दी साइडों के लॉन्ग तो डायगोनल के लॉन्ग, एक फोर्स इधरों लगती पई, एक इधरों लगती पई, एक इधरों तो एक इधरों, एक इस तरह डायगोनल, ठीक है। तो ये साबित करना कि जिहड़ियां फोर्सेस है ना, एक कपल बनादियां हैगियां, सिंगल कपल। तो ये पता की है, तुसी सिर्फ एको फोर्स वाले पासे ध्यान देना, जिहड़ियां बाकी फोर्सेस नालों डायरैक्शन वक्री बना रही हैगियां, आ वाली इनू तोड़ लो, ये रिजॉल्ट पार्ट लै लो, एक रिजॉल्ट पार्ट इधर कंबाइन कर दो, एक रिजॉल्ट पार्ट इधर कंबाइन कर दो, ठीक है। ये 2 रिजॉल्ट पार्ट बने 45 डिग्री एंगल है, क्योंकि जो डायगनल होंदा है स्केयर का 45 डिग्री एंगल बनाता होंगे। तो एक रिजॉल्ट पार्ट की होगा 2 स्केयर रूट 2 cos 45, तो एक जो इधर रिजॉल्ट पार्ट होगा वो भी 2 स्केयर रूट 2 sin 45, ठीक है। यानी कि एक रिजॉल्ट पार्ट इधर मिल गया, बना के दे कितना बनता, 2 स्केयर रूट 2 cos 45, cos 45 कितना होगा 1 बड़ा स्केयर रूट 2, वो स्केयर 2 कट दूगा, यानी कि 2 बन गया। यानी कि इस फोर्स का जो रिजॉल्ट पार्ट है AB के लॉन्ग 2 यूनिट है, इस तरह ही इस फोर्स का रिजॉल्ट पार्ट AD के लॉन्ग 2 यूनिट है, पर उपरले पासे नूं है, वो इस 4 वाले इफैक्ट नूं जो नीचे नूं जा रहा है घटाएगा। हुण सारियां फोर्सेस कंबाइन करो, AB के लॉन्ग किहड़ियां फोर्सेस हैं, एक तो खुद एक होगी, एक इधरले पासों 2 यूनिट आई है ना, तो 1 + 2 3 यूनिट आ गए। BC के लॉन्ग तो पहले ही 2 है, हाँ लिखती 2, तो CD के लॉन्ग 3 ही है, इधर कोई होर फोर्स नहीं आई। तो DA के लॉन्ग कितनी फोर्स ने, या DA के लॉन्ग एक 4 होगी, तो एक -2 यदा रिजॉल्ट पार्ट है, ठीक है, तो वो 2 बन गया, ठीक है। हुण देखो फोर्सेस आ वाली AB ते CD दोनों पैरलल साइज ने, दोनों के लॉन्ग 3 ते 3 फोर्सेस लगनियां ने ओपोजिट डायरैक्शन दे विच, इन्हां दा कपल बन जाऊगा। इसी तरह BC ते DA आ दे, हाँ BC ते DA ओपोजिट है डायरैक्शन ते पैरलल ने, ये भी कपल बना लिया, 2 कपल आ गए, 3 का 2 का, ठीक है, तो कपल बन गया। इन्हां दा जिहड़ा रिजल्टेंट होगा कितना होगा, जब एग्जाम निकाल लो या मूवमेंट लै लो ए दे अबाउट, सारिया फोर्स का ना मूवमेंट लै लो ए दे अबाउट, वही थोड़ा कपल का जो मूवमेंट होएगा, जिन्नियां भी फोर्सेस ने सारिया का मूवमेंट लै लो, वो कितना होगा 1 0 क्योंकि पास कर दी है, 2 गुणा A 2 पास नहीं करती पी BC के लॉन्ग, एक 3 गुणा A CD के लॉन्ग ये भी पास नहीं करती ए चों, एक 4 गुणा A 4 गुणा 0 तो स्केयर रूट 2 स्केयर रूट 2 ये डायगनल है, ये भी ए चो पास करता। 3 फोर्सेस ने 1 तो 2 तो ये दे विचों पास कर दी ने, क्योंकि मूवमेंट 0 होगा, इन्हों का मिलकर मूवमेंट 5 यूनिट बन जाएगा, ठीक है, 5A बन जाएगा इनफैक्ट। तो यानी कि जिहड़ियां फोर्सेस मिल के एक कपल बना रही ने, है ना, तो उन्होंने मूवमेंट कितना होगा 5 यूनिट होगा। अगे चलते हैं, ABCD एक रंबस है, ठीक है, जिहदियां साइड जी L है
ਤੇ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਅਲਫਾ ਹੈ, ਇਸ ਰੰਬਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਇੱਕ ਸਕੇਅਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸੌਰੀ ਏ ਬੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸੌਰੀ ਸਕੇਅਰ ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਦੇ ਰੰਬਰਸ ਆਫ ਸਾਈਡ ਐਲ angle alpha and a scale is constructed on the side CD so as lie on the side CD away from AB. Forces P each act along lines AB, BC, DA, DF, FE, EC and force 2P along CD. Show that the system reduces single couple and magnitude of whose moment is this 2LP 1 minus sin alpha. मैं डायग्राम देख के समझा देना है। आ एक थोड़ी रंबस बन रही हैगी है, ठीक है। इस रंबस का आ वाला एंगल अल्फा दे रखा है अपन, तो उन्होंने ये आख्या कि साइड सी डी के उपर ना एक स्केयर बनाया इस तरह, तो अपन फोर्स दे रखिया इस तरह एक्ट कर दी जी, पी ये लॉन्ग ये लॉन्ग ये लॉन्ग तो का 2P ये लॉन्ग तो का पी तो एक काबली पी, ये इस तरह दे रखिया अपन फोर्सेस, ठीक है। आप AL ड्रॉप करते हैं परपेंडिकुलर DC के उपर या CD के उपर ड्रॉप करता, साइन अल्फा कढ़ लाँगे आप AL बटा AD के बराबर होगा, AL बटा AD का अपना L है ना, वो तो फिर अपना जोड़ा है AL जोड़ा L साइन अल्फा आ जाऊगा। सिमिलरली AD तो BC भी इन्ने आ जाएंगे, ठीक है, AD ते BC, ठीक है, L साइन अल्फा। उस तो बाद सिंस P लॉन्ग DA फोर्स P लॉन्ग DA तो P लॉन्ग BC, DA तो BC आ देखो आ इधर नूं जा रही है, आ उल्टे पासे जा रही है, दोनों कपल बना रही ने, दोनों का मोमेंट कितना होगा, इन्हों के परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, है ना। परपेंडिकुलर जिन्ना आ वाला सीगा AD, सॉरी आ वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, तो ये L साइन अल्फा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना बच्चे, क्योंकि इन्होंने क्लॉकवाइज इफेक्ट कर दिया पई ने, तो -PL साइन अल्फा आ जाऊगा, ठीक है। इस तरह P लॉन्ग AB एंड P लॉन्ग CD फॉर्म ए कपल, वो भी क्लॉकवाइज इफेक्ट क्रिएट करेगा कपल, तो वह -PL साइन अल्फा आ गया। फिर उस तो बाद फोर्स लॉन्ग DF एंड फोर्स लॉन्ग EC वो भी कपल बनाती है जिसका मूवमेंट PL है, ठीक है। फोर्स लॉन्ग DF ते फोर्स लॉन्ग CE EC या EC, ठीक है, तो वो अपना आ गया LPL साइन अल्फा, आ लेंथ जी है L आ गई, वैसे लेंथ स्केयर की L ही है, ठीक है, तो PL आ गया। एक रह गया अपना कपल, वो केड़ा है फोर्स लॉन्ग CD एंड फोर्स लॉन्ग FE आल्सो फॉर्म कपल, वह भी मूवमेंट BL आ जाएगा, ठीक है। हम टोटल अपने को 4 कपल आ गए, चारे कपल का मूवमेंट कितना होगा, सारा के कपल के मूवमेंट का जोड़, सारा के कपल के मूवमेंट जोड़ दो, इन्ना आंसर आ जाएगा जो आप प्रूव करना है, ठीक है।